Hello. Uh, Hello everyone. Today I'm going to discuss about the difference between the NC machine and CNC machine. Right? So earlier lectures we had discussed about the NC control techniques and CNC control. We gave basic introduction about CNC and VNC and NC programming. Now today I'm going to discuss about the difference between the NC and CNC. Most of the time in actually in a university examination the questions will be asked on the basis of the difference between NC and CNC. So you have to know about the what are the difference, what are the major point, what are the major point of NC and what are the major point of CNC. So you have to know about the difference between the CNC and VNC. Now I'm going to discuss about the difference between NC and CNC right now. Okay. So you have to understand about that. What is difference between the NC and CNC and what is difference between the okay, so you have to understand about that. Okay. Now I'm going to discuss about the difference between NC and CNC machining. Right? So first today's topic today's topic is difference between NC and CNC system. NC and CNC सिस्टम राइट। आज हम जो डिस्कस करेंगे जो हम पढ़ेंगे वो डिफरेंस पढ़ेंगे कि एनसी और सीएनसी में क्या डिफरेंस है, फिर सीएनसी और डीएनसी में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो डिफरेंस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीएनसी और डीएनसी और एनसी और सीएनसी में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम एनसी के बारे में डिस्कस करेंगे, एनसी और सीएनसी। तो एक तरफ हम लिख लेंगे एनसी मशीन, दूसरी तरफ हम लिख लेंगे सीएनसी मशीन। राइट, एक तरफ एनसी एक तरफ सीएनसी मशीन। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो हम लिखेंगे सबसे फर्स्ट पॉइंट जो सीएनसी में आएगा, एनसी में आ जाएगा, ये आएगा कि एनसी मशीन्स आर हार्ड वायर्ड। हार्ड वायर्ड, the program is read using tape and tape reader. The program is read using tape and tape reader. Right? First point वो है NC machines are hardwired. Hardwired होता है और the program is read using tape and tape reader. Similarly अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो है CNC machines are softwired. हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। CNC machines are soft-wired. The controller is computer system. The controller is computer based. Right? अभी हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड पॉइंट है एनसी में द टेप एंड द टेप रीडर आर द मोस्ट unreliable component. The tape and the tape reader, tape and the tape reader, the tape and the tape reader are the most unreliable component. Unreliable component. ठीक है, सेकंड पॉइंट ये हो गया।
इसमें देखेंगे तो टेप इज omitted the tape reader. 30 minutes only. 30 minutes. बताएंगे. 5. 5. omitted. Omitted since it make use of microprocedure based control. Since it make use of microprocessor microprocessor based control, right? Okay. Now the third point, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि एनसी मशीन आर हार्ड वायर होता है, हार्ड सॉफ्टवेयर, हार्ड वायर इसमें यूज करेंगे. सेकेंड पॉइंट है कि इसमें ये कहता है कि और द प्रोग्राम इज रीड यूजिंग द टेप एंड टेप रीडर. जो प्रोग्राम हम रीड करते हैं वो टेप या फिर टेप रीडर से यूज करते हैं. दूसरा जो पॉइंट होता है द टेप एंड द टेप रीडर आर मोस्ट अनरिलायबल कंपोनेंट. अगर रिलायबिलिटी उसकी ज़्यादा नहीं होती है टेप और टेप रीडर की, वो बहुत ज़्यादा अनरिलायबल होता है, अनरिलायबल होता है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम क्रिएट होती थी किसमें, एनसी में. अभी आप इस पे देखेंगे सीएनसी मशीन का सॉफ्टवेयर, मतलब इसमें सॉफ्ट ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर का यूज है. तो बेसिकली इसमें जो कंट्रोलर है वो कंप्यूटर सिस्टम ही कंट्रोलर है. इसमें जो टेप रीडर जो होता है वो ऑमिटेड करता है सिंस इट मेक्स यूज ऑफ द माइक्रो प्रोसीजर बेस्ड कंट्रोल. माइक्रो प्रोसीजर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम का इसमें हम यूज करते हैं. ये दो पॉइंट हैं. नेक्स्ट पॉइंट और भी हैं. स्ट्रेस का मैं किसी तरह का नंबर है. Third point is the part programming mistakes are common due to the use of one step. Part programming. Part programming. Part programming mistakes are common due to use of one step. Due to use of one step. पार्ट प्रोग्रामिंग में अगर कोई मिस्टेक या एरर आता है अगर एनसी मशीन में, तो वो ड्यू टू द यूज ऑफ वन स्टेप. हम वन स्टेप का यूज करते हैं, तो वन स्टेप की वजह से क्या आता है, प्रॉब्लम आती है पार्ट प्रोग्रामिंग में. कुछ एरर आ जाता है, कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं. तो पार्ट प्रोग्रामिंग मिस्टेक्स आर नॉट हियर. इस वाले केस में क्या होता है, हमारा पार्ट प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम होती है वो होता ही नहीं. पार्ट प्रोग्रामिंग मिस्टेक्स or not here, or not. यहाँ पे हमारा पार्ट प्रोग्रामिंग में कोई मिस्टेक अवेलेबल ही नहीं होता है. सिर्फ और सिर्फ पार्ट प्रोग्रामिंग अगर एरर देखा जाए तो वहाँ पे होता है, वो होता है हमारा एनसी मशीन में ही तो पार्ट प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम क्रिएट होता है. राइट. नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, द कंट्रोल सिस्टम डज नॉट प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी टू मेक. इसमें क्या होता है, द कंट्रोल सिस्टम, नोट कर लीजिएगा, कंट्रोल सिस्टम डज नॉट प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी to make changes
in speeds and in speeds and speeds speeds and fleets during cutting process during cutting process. The control system does not present opportunity to make changes in speeds and fleets during the cutting process. कटिंग प्रोसेस होगा तो उस टाइम कोई भी प्रकार का चेंजेस हम नहीं कर सकते थे। मतलब अगर हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, मशीनिंग स्टार्ट हो गई, तो हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते थे उस टाइम। इस केस में स्पीड फीड एंड डेप्थ ऑफ कट कैन बी वेरिड। इस केस में क्या होता है, स्पीड फीड एंड डेप्थ ऑफ कट can be varied while machining, thus giving high productivity. राइट। तो देखिए बेसिकली डिफरेंस है, उस डिफरेंस को समझना है। डिफरेंस को आप समझिए तो समझ में आपको आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखने के बाद मैं समझा देता हूँ। पॉइंट नंबर 5 इसको आप नोट करते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। सिंस द कंट्रोलर इज हार्डवायर since the controller is hardwired, it cannot be altered or improved easily. It cannot be altered or improved easily. इसको दिख रहा हूँ, ठीक है। इम्प्रूव का इजीली लिखा हुआ है। इस केस में क्या है, सिंस द कंट्रोलर इज सॉफ्टवेयर, since the controller is software, various new features such as interpolation algorithm algorithms etc. can be added over a period of time, right? So you have to understand the basic difference between NC and CNC. सबसे पहले हमने बताया था कि जो हमारा NC मशीन होता है वो हार्डवायर्ड होता है, जो हमारा CNC होता है वो सॉफ्टवायर्ड होता है, ठीक है। बेसिकली जब पार्ट प्रोग्रामिंग में मिस्टेक्स जो होता है NC में, तो ड्यू टू द कौन स्टेप की वजह से होता है, हमारा NC में पार्ट प्रोग्रामिंग में मिस्टेक्स में दिखता है। जो मिस्टेक्स में दिख रहा होता है वो किस वजह दिख रहा होता है, वो इस वजह दिख रहा होता है कि कौन स्टेप हमारा होता है, उसकी वजह से हम कौन स्टेप यूज करते हैं NC मशीन में। कौन स्टेप यूज करने की वजह से हम वहाँ पर डिफरेंस एरर मिस्टेक्स आ सकती है पार्ट प्रोग्रामिंग करते हुए। बट जब हम जो है CNC में पार्ट प्रोग्रामिंग करते हैं तो यहाँ पे किसी प्रकार का मिस्टेक्स नहीं होता है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट तो यूज करते नहीं, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर बेसिस है, यहाँ पे हार्डवेयर में मैनुअली काम करना है। फिर हम देखते हैं कि जब हम कंट्रोल जो सिस्टम है वो डज नॉट प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी टू मेक चेंजेस इन स्पीड ड्यूरिंग कटिंग। ध्यान से समझिएगा, जब मशीन वर्किंग में आ जाता है, जब हमारा मशीन जो है वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा, वर्क करना शुरू हो जाएगा, मतलब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा।
मशीनिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब मशीनिंग स्टार्ट हो जाएगी, उस दौरान हमारा जो एनसी मशीन में क्या होता है कि हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। बात समझिएगा, अगर एक बार हम बता दें कि अगर ये कटिंग स्टार्ट हो गई, तो हम इसकी स्पीड में, कितनी स्पीड से कटिंग हो रही है, इस स्पीड में हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, किस केस में, तो अगर हम एनसी मशीन यूज़ करते हैं। बट वहीं पे अगर हम सीएनसी मशीन यूज़ करके इसमें कटिंग कर रहे हैं, तो हम इसकी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं। बढ़ा भी सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, सीएनसी मशीन में। बट एनसी मशीन में एक जो फीड रेट दे दिया, एक जो स्पीड दे दिया, वो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक चलता रहेगा। बट सीएनसी मशीन में अगर आपने फीड रेट शुरुआत में ज़्यादा देना है, ज़्यादा दे दें, कम देना है तो कम कर दें। ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर उसको माइक्रो कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक डिफरेंस है। फिर है कि सिंस द कंट्रोलर इज हार्डवायर्ड, जैसा कि हम जानते हैं कि एनसी में आप हार्डवायर्ड कंट्रोलर यूज करते हैं, तो इट कैन नॉट बी अल्टर्ड और इम्प्रूव इज इम्प्रूवमेंट। अगर हमारा हार्डवायर्ड इसमें यूज करते हैं एनसी में, तो हम इजीली जो है इम्प्रूव, उसको इम्प्रूव या इजीली जो है हम अल्टर नहीं कर सकते हैं। अल्टर का मतलब है अगर हमको कोई जिस फीचर्स को रिमूव करना है, रिमूव करना है, तो हम उसको क्या करते हैं, एनसी मशीन में हम कर नहीं सकते। ये संभावना ही कि हम कर नहीं पाएँगे। बट अगर हमारा यही चीज़ अगर हम सीएनसी मशीन में कर रहे हैं, तो हम अगर अल्टर करना चाहें, इम्प्रूव करना चाहें, तो हम इम्प्रूव कर ले जाते हैं और कर लेते हैं। तो ये चीज़ हमारा इसमें होता है। बेसिकली एनसी और सीएनसी में ये बेसिक डिफरेंस है, जो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है एनसी और सीएनसी में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये एनसी सीएनसी का आप नोट भी कर लीजिएगा। एनसी और सीएनसी में जो बेसिक डिफरेंस था, वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो 5 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, और भी आप स्टडी करिएगा, और भी अगर पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं, मिल तो जाएंगे, तो और अच्छी बात है, पॉइंट्स बढ़ा दीजिएगा। हमेशा कोशिश करें कि पॉइंट वाइज लिखें। पॉइंट वाइज लिखने से काफ़ी बेहतर होता है, आपको पूरी पॉइंट लिखना चाहिए। अभी हम लोग एनसी और सीएनसी के बीच में जो डिफरेंस था, वो हम लोगों ने पढ़ा, उसके बारे में हम लोग समझ गए। अभी कभी-कभी क्या होता है एग्जामिनेशन में डिफरेंस आ जाता है कि डीएनसी और सीएनसी के बीच में बताइए क्या होता है। तो हमें लगता है कि हमें डीएनसी के बारे में भी डिफरेंस पढ़ लेना चाहिए कि डिफरेंस क्या होता है। सीएनसी हमने पढ़ा, तो सीएनसी सिस्टम, ठीक है, ये सीएनसी सिस्टम हो जाएगा। यहाँ पे आपका डीएनसी डीएनसी सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं न कहीं आपके 2 पॉइंट्स मिल जाएँगे, सीएनसी और डीएनसी। तो डिफरेंसेस अगर आपको पता है, तो आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप सीधे इसके बारे में जान जाएँगे। डिफरेंसेस पढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपको उसके बारे में पता चल जाता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चल जाता है। सीएनसी जैसा कि हमने पढ़ा अभी, मैं दोबारा लिख देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट इसमें होगा कि द सीएनसी कंप्यूटर कंट्रोल, सीएनसी सीएनसी कंप्यूटर controls only one machine tool, only one machine tool, or sometimes a small number of machine, or a small number of machine tools। ठीक है, सीएनसी कंप्यूटर कंट्रोल्स ओनली वन मशीन टूल होता है इसमें, और या फिर सम टाइम क्या होता है स्मॉल नंबर ऑफ मशीन टूल आ जाते हैं सीएनसी में।
सिमिलरली डीएनसी में अगर हम देखें तो डीएनसी कंप्यूटर कंट्रोल्स लार्ज नंबर ऑफ डीएनसी कंप्यूटर कंट्रोल large number controls large number of machine tools, large number of differ large number of machine large number of machine tools, large number of machine tools. They supply instruction to large number. They supply they supply instruction to large number. They supply instruction to large number of machine tools and collect of machine tools and collect the data and collect the information from them and collect the information collect the information from them and collect the information from them. वहाँ से हम क्या करते हैं इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं राइट. In CNC computer it is always locate it is always locate it is always located near the it is always located near the always located near the machine pool near the machine tool or machine tools they are controlling or machine tools they are and our machine tools they are controlling our machine tools they are controlling. तो बेसिकली आप ये समझिए कि इसमें क्या होता है कि लोकेट करते हैं मशीन टूल को नियर द मशीन टूल और मशीन टूल्स दे आर कंट्रोलिंग जो हमें मशीन टूल को कंट्रोल करता है. और दिस it is normally placed it is normally placed it is normally placed at a location at a location at a location that is normally a computer normally a computer is normally a computer like and clean one like and basically there are 2 points बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको डीएनसी और सीएनसी डीएनसी भी इसमें क्या होता है कंट्रोल द individual or group of machine tool group of machine tool. इस वाले केस में क्या होता है ये हमारे इस वाले केस में क्या होता है कंट्रोल करते हैं लार्ज नंबर ऑफ मशीन टूल कंट्रोल large number of machine tool large number of machine tool. ठीक है कंट्रोल इसमें करते हैं कंट्रोल द इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ मशीन टूल इसमें कंट्रोल करते हैं लार्ज नंबर ऑफ मशीन टूल. ठीक है ये दोनों में डिफरेंस है. it is not the essential part of management information system management information
some essential part of management information syndrome. But in DMC, main part of it is the main part of MIS, management information. Basically, this is the basic difference between DNC and CNC, right? This is the basic difference. These are the points. These are the basic points जो है जो एक दूसरे को डिफर करता है सीएनसी सिस्टम में और डीएनसी सिस्टम में। बेसिकली आपको यहाँ समझना है कि डीएनसी और सीएनसी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो बेसिकली जो बेसिक डिफरेंस था, जो बेसिक डिफरेंस पढ़ना है वो यही है कि एनसी और सीएनसी में जो बेसिक डिफरेंस है वो हमने आपको आज बता दिया। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हमने बेसिक जो है पढ़ना है वो हमें पढ़ना था। पहले हमने सबसे पहले आपको बताया एनसी मशीन और सीएनसी मशीन में बेसिक डिफरेंस क्या है, एनसी और सीएनसी दोनों में क्या डिफरेंस है। बेसिक जो डिफरेंस था वो एनसी में हमने पढ़ा, सीएनसी में पढ़ा। उसके बाद हमने डीएनसी और सीएनसी, तो देखो एनसी डीएनसी एंड सीएनसी इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आया। एनसी डीएनसी सीएनसी, नाउ इट इज सीएनसी मोस्टली यूज होता है क्योंकि सॉफ्टवेयर बेसिस है और हम कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज करके हम कुछ काम करते हैं, लेकिन बहुत ही आसानी से बहुत तेजी से जो है जो चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। तो कहीं ना कहीं आज के टाइम में सीएनसी का ज़्यादा यूज है, सीएनसी कंट्रोल सिस्टम का बहुत ज़्यादा यूज है, जिसका हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल सिस्टम का यूज कर रहे हैं। तो मेरा बस इतना मोटिव था कि आपको अगर सेमेस्टर एग्जामिनेशन में देखिए डिफरेंस अगर आप पढ़ते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होता है। डिफरेंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको इंडिविजुअली डीएनसी और सीएनसी के बारे में पता चल जाएगा। उसके जो मेजर पॉइंट होंगे वो मालूम चल जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या मेरिट्स है वो आपको मालूम चल जाएगा, और एक पैराग्राफ और डिफरेंस भी दोनों में डिफरेंस मालूम चल जाएगा। तो आप जो है इसीलिए क्वेश्चन 2012 थ्योरम पूछा गया था। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है एनसीसी उसके बारे में पूछा गया है। एडवांटेज डिसएडवांटेज ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही आसान होते हैं, जो आपको थ्योरेटिकल होते हैं आपको, लेकिन हाँ आपको अगर नंबर गेन करना है तो आपको 2D पॉइंट लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप स्टोरी लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। आप 2D पॉइंट लिखिए, बेसिक पॉइंट। ऐसा नहीं कि आप इसी सेंटेंस को याद करेंगे, नहीं, आप इसमें बेसिक जो मेजर पॉइंट है, जैसे इसमें क्या कंट्रोल करता है इंडिविजुअल और ग्रुप मशीन को, ये क्या करता है लार्ज नंबर ऑफ मशीन को कंट्रोल करता है। आप ऐसे याद करो, ऐसे याद करोगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। फिर सीएनसी क्या है, ये एमआईएस का पार्ट नहीं होता है, एसेंशियल पार्ट नहीं है, ऐसा नहीं उसका पार्ट है इसका सीएनसी का जो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बट डीएनसी में आते हैं तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का ये मेन पार्ट है, मेन पार्ट हो जाता है। इसी तरीके से हमको चीज़ों को पढ़ना होता है, समझना होता है। हमको ये देखना होता है कि हम जो एनसी जो सिस्टम है हमारा, एनसी जो सिस्टम है, तो एनसी सिस्टम में हमारा हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है। तो आप जब ऐसे पढ़ते जाओगे तो बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा। तो ये आज का जो मेरा लेक्चर है वो एनसी डीएनसी से था। आगे जो है मैं कोडिंग बता दूंगा कि क्या क्या कोड, दो कोड एम कोड और जी कोड यूज करते हैं लैब में मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उसको मैं बता दूंगा कि कोड जो है लिख दूंगा कि किस कोड का क्या यूज है, ये आपको रिमेंबर हो जाएगा, याद हो जाएगा। आफ्टर दैट एक 2-3 न्यूमेरिकल लगाएंगे जो हमारे सेमेस्टर एग्जामिनेशन आए हुए हैं, जिससे आपका कैम वाला पोर्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और साथ में फिर हम आगे उसमें और देखेंगे कि सिलेबस में क्या है, क्या चीज़ें बाकी हैं, उसको हम लोग पूरा थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। क्योंकि थर्ड यूनिट चल रहा है APTU के हिसाब से हमारा चल रहा है सिलेबस, तो थर्ड यूनिट भी होपफुली बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और मोस्टली जो फोर्थ फिफ्थ यूनिट के भी कुछ टॉपिक कवर हो चुके हैं, तो उसको भी हम लोग चलते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। तो कल का जो लेक्चर होगा, कल या परसों बनाएंगे, उसमें जो होगा हमारा बेसिकली जो है कोडिंग के बारे में हम लोग समझ लेंगे कि कोडिंग किस कोड का क्या क्या मीनिंग है, G01 क्या है, G02 क्या है, M09 क्या है, उसको हम समझ लेंगे, उसके मीनिंग्स को समझ लेंगे।
तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।